if you see this picture, मुझे विनोद जी इससे अच्छी बेटर पिक्चर नहीं लगी जो याद रखे हमें कि अडेप्टिव लीडरशिप क्या होती है. क्या बात है. Yeah, because if हमें क्या दिख रहा है, can you see the wave, right? So when you see this kind of a wave, what do you remember? Do we remember the surfers जो इस wave को surf करते हैं? Now, before surfing, they have loads of planning, they have loads of practice. ऐसे आएगा तो हम ऐसे करेंगे and all that. However, when they start surfing, the whole fate, पूरी उनकी किस्मत की ये वेव कैसी आएगी, it is only shown when the wave comes. Now, when the wave comes, अगर मैंने प्लान किया था कि मैं ऐसे जाऊंगी, मैं वैसे ही जाऊंगी, the wave has not come that way. So that means I'm not able to adapt. So what the surfers do, who ride the wave, they see the wave and then they try to ride it. And the one who adapts मतलब अपनी plan, अपनी theory, अपनी practice सब कुछ change करेंगे according to the wave. And then you see that you are able to surf. और जो ये नहीं करते, what happens? They are thrown out. So एनी टाइम अगर आपको अभी आज याद रखना है कि वॉट एवर अडेप्टिव लीडरशिप, यू शुड थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ कि देयर आर सर्फर्स. नाउ इफ दिस सर्फर्स डू नॉट अडेप्ट टू द वेव, दे कैन नॉट राइड. Same is for us, same is for project leaders. If they want to be successful in the project, they have to adapt, especially now when there is so much of agility. And hence we thought, Vinod ji और मेरी बात हुई कि आप इतना project management की training करते, तो let's try to give you an adaptive leadership. Now again, ये ऐसा नहीं कि आपके 20-30 साल का experience है तभी आप adaptive leader बनोगे. Even day one, you're a plan of an executive team. Still, if you have an adaptive leadership, you know that okay, मैंने ये plan किया था, या sir ने मुझे ये काम बोला था, but ये situation change हो गई, COVID आ गया, ठीक है, I will change my plans. Especially now, I don't know. अगर आप खुद ही सोचो कि आप अभी हमें पता है थर्ड वेव आने वाली है. So we don't know what plans we have to make because हाँ मैं 15 तक कहीं ट्रैवल करूंगी अगर थर्ड वेव नहीं आई तो, राइट. नाउ दिस इज आवर अडेप्टिव नेचर. वी आर ट्राइंग टू अडेप्ट आवरसेल्फ के आई एम प्लानिंग समथिंग, however if things change I will change my plan. Do let me know if I go very fast, or if you want me to be more in Hindi, please let me know. A little background about myself. Parul Siddiqui. I have 20 years of corporate experience. I worked for companies like Lucent, Motorola, and Airtel in the leadership role. Very few female in telecom domain. So yeah, I feel proud to be part of that. During Lucent, I got this passion of project management because Reliance CDMA project was given to Lucent US. So we were working with all the aspects who were literally following the project management. And thereafter, since I got an interest, I started looking out for what it is and how do you can get a certification. So I remember in the month of May, I started doing my research, and by September 2005, like May to September, I did my PMP certification, and I was first woman in Motorola and second across the Motorola to have the PMP certification that time. Uh, thank you, Sanjeev. So later, I left my job in 2009, and after 2009, I started doing a freelance, which is project management training, leadership training. But there also there was a gap that I found, that a lot of people just call people to give a training. They are not sure of whether they can add a value. A lot of time it happens that today probably I'll talk to you about adaptive leadership. It's not today you have any question, but after some time you have a question, but then there is no one to guide you. So we do training, mentoring, feedback, reviews, this kind of thing, and hence PM Enhanced helps project management consulting and training companies. We also are doing college graduates, because a lot of them are not employable. Secondly, when they join companies like Accenture, तो ये project language पे बात करते हैं. So I don't say my graduates should know everything about project management, but at least the jargon, how things happen, what is scheduled. So we try to prepare them and be productive from day one and be job ready. That is what we say. So why today? Importance of importance of leadership. So why are we so far talking about leadership, or why we should be talking about leadership? As I said, today more than ever, companies have a less resource. The uncertainty is at the highest, so people are not sure
how things will happen, what will happen in future. So when you do not know the path ahead, जब आपको आगे का रास्ता नहीं पता होता है, तो आप एक लीडर चाहते हो कि ये लीडर मुझे ले जाएगा, बस आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए. सो नाउ कंपनीज आर लुकिंग, पहले लीडर होता था कि मतलब आई एम टेलिंग यू डू दिस डू दैट, अच्छा ये आसित आपका ये काम है, अजय आपने ये काम पूरे करने. नो, नाउ लीडरशिप इज मोर अबाउट अडैप्शन, servant leadership. It's very good, you know, so that you are trying to be part of the team, get their faith, get their confidence, and then guide them ahead. So yes, today is the right time to learn more about leadership. Many project managers focus their attention, you know, कि resource मेरे पास कम है, कि क्या resource है, क्या tools है. If you are a good leader with less amount of resource also, you can guide your team and you can take your project to success. So we are talking about adaptive leadership. Adaptive leadership. What exactly is an adaptive leadership? Basically, it's a capacity of the project leader to embrace the project complexity. Why we are saying project complexity? Because as I said, that project is uncertain. Project is working with so many teams. My team is there, which is not 100% loyal to me, because there's a temporary project is temporary, so probably my team know that they are going to be only with me for 1 year. तो ये इनको ये नहीं पता है कि ये मेरा अप्रेजल ये करने वाले हैं, हो सकता है मेरा अप्रेजल कोई और करेगा, यू नो, दैट दोस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कम्स. देन प्रोजेक्ट पे बहुत सारी और कॉम्प्लेक्स आती है, आपको ऑपरेशन से डील करना है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट से डील करना है, लॉट ऑफ ईगोज दैट यू हैव टू डील विद, कि हर एक का अपना अपना ईगो, अपना अपना बेनिफिट, अपना अपना एडवांटेज होता है एक प्रोजेक्ट को सक्सेस या फेल करने में. ये सारा आपको मैनेज करना है. तो अगर मैं एक एटीट्यूड लेके चलूं कि जैसे मैं अपनी टीम के साथ बात कर रही हूँ, जैसे मैं अपने बॉस के साथ बात कर रही हूँ, वैसे मैं सबके साथ करूंगी, डज इट वर्क? आप भी जब प्रोजेक्ट्स वगैरह का वर्क करते हैं, तो आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं, देयर इज अ डिफरेंट ऑरा, डिफरेंट एटीट्यूड टू टेक. जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स के पास जाते हैं, जो आपके डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है, बट आपको पता है कि वो ऑपरेशन टीम, वो प्रोडक्शन टीम या परचेज ऑर्डर्स मेरे वहां से निकलने हैं, सो देयर इज अ डिफरेंट ऑरा दैट यू डू इट. नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, बट ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी और ये मल्टीट्यूड स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनके हर एक के अपने मोटिव्स होते हैं. अगर आपको ये मैनेज करना है, तो आपने अडेप्ट होना पड़ेगा. आपने अडेप्ट होना पड़ेगा इन अ वे दैट आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, व्हाट इज इट दैट इनको ये मोटिव कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी टीम को मोटिव करना है, देयर आर चांसेस रिवॉर्ड रिकॉग्निशन काम आएगा. नाउ मुझे अपने बॉस से कुछ अप्रूवल लेनी है, reward recognition wouldn't work there, but there is something else that might work, right? So आपको ये पता होना चाहिए कहाँ क्या चीज काम आती है, कहाँ कैसे मुझे behave करना है, which means how do I adapt. The day you do this, so adaptability is a capacity of the project leader to embrace the project complexity while maintaining a multitude stakeholders, motives and objectives. Everyone has their motive and objective in your project. It will foster, if you enable yourself to be an adaptive, you can foster and enable adaptive leadership within customer, क्योंकि आप customer को भी अपने साथ ले रहे हो, you're empathizing with them, you're being with them, suppliers and internal network. So all the focus is on the adaptation required for people in the response to changing the environment. The biggest thing when you need an adaptation is, you know, when there is a change, no one likes it, right? आज हमारी life comfortable चल रही है, हम सब कुछ ठीक चल रहा है, सो द मोमेंट इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है. सिंपल एग्जांपल, ऑल दिस सेशंस आपके 12 बजे होते हैं, आज ये 4 बजे हो रहा है, दिस इज अ चेंज. So we can see that, you know, maybe few people have not joined, few people must have forgotten. So no one likes change. Everyone is very used to कि हाँ हर संडे 12 बजे होता है. That's called being comfortable. But moment you do something different, moment you change, it's something in your body that happens. You know that, oh यार ये क्यों change हो गया. So this is the place when you need to be an adaptive. You have to see that how you can motivate them to accept the change willingly. Of course, not with a stick or carrot sort of thing, but willingly. What can we see here? A dance floor? Yes? अब सोच रहे होगे लो अभी अडेप्टिव लीडरशिप करते करते अब डांस फ्लोर पे कहाँ पहुंच गए, राइट? बट जस्ट इमेजिन वी आर ऑन दिस डांस फ्लोर, लाउड म्यूजिक चल रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप डांस कर रहे हो, सो यू आर इन अ मोशन, यू आर डांसिंग, यू आर एंजॉइंग.
अब ये है जिनसे आपको बात करनी है, द पर्सन, वन ऑफ द पर्सन जिनसे आपको बात करनी है। आप क्या उस डांस फ्लोर पे खड़े खड़े उनसे बात कर पाएंगे? कैन वी? इट विल बी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि वहाँ इतना शोर है, इतना इतना शोर है कि मेरी आवाज उनको नहीं पहुंचेगी, या फिर जो मैंने बोला कभी कभी वो गलत भी समझ सकते हैं। तो आप क्या करोगे? उनको यहाँ से उस डांस फ्लोर से थोड़ा सा दूर ले जाओगे जहाँ पे आवाज कम होगी, और आप उनसे बात करोगे और एक दोनों बात दोनों को समझ में आ गई। सेकेंड वुड बी कि ये या एरिवन सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी कि आपने समझ लो 200 लोगों की पार्टी दी थी। अब आप इस डांस फ्लोर पे हो, आपके आसपास मे बी 25-30 पीपल है और सारे एंजॉय कर रहे हैं, और आपको लगता है वाओ माय पार्टी सक्सेसफुल बिकॉज एवरीवन इज एंजॉयिंग। इट इज ओनली आफ्टर सम टाइम जब आप डांस फ्लोर से नीचे उतरे और आप बालकनी की तरफ गए, वहां से जब आपने व्यू देखा, आपको लगा ये 30 दिन तो ठीक है, दे आर एंजॉयिंग, बट देर आर पीपल गेटिंग बोर्ड इन द पार्टी, देर आर पीपल हु आर नॉट एंजॉयिंग माई पार्टी। अब आप क्या करोगे? आप उनके पास जाओगे, या फिर आपको पता है कि इन लोगों को ये म्यूजिक नहीं पसंद आता, आप थोड़ी देर म्यूजिक चेंज करोगे, आप लोगों से बात करोगे। कुछ लोगों को जरूरत होता है कि थोड़ा सा पुश करके डांस फ्लोर पे लाना पड़ता है, तो आप वो सब करोगे। व्हाई विल यू डू दैट? बिकॉज यू वांट एवरीवन टू बी कंफर्टेबल, टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आपने एक पार्टी दी है ना। अगर आप ये डांस फ्लोर पे होते तो आपको ये नहीं दिखता, बट क्योंकि आप डांस फ्लोर से निकल के बाहर गए, तब आपने देखा कि ये प्रॉब्लम है। So there is a term that is coined for an adaptive leadership, which is says get off the dance floor. What do we mean by that is, अगर आप बहुत सारे दिन के मेल्स चेक कर रहे हैं, आप डे टू डे फोन कॉल्स है, आप जगलिंग कर रहे हैं कि अरे यहाँ से ये मटेरियल आना था, अरे ये आया नहीं आया, ओके व्हाट इज हैपनिंग, ये डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है। इफ बीइंग अ लीडर यू आर डूइंग दिस डे टू डे टास्क, यू आर ऑन द डांस फ्लोर। अगर आपको एक एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझा है तो डाउन फ्लो हमारा हो सकता है प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन जहां होती है। तो जहां एग्जीक्यूशन होती है वहां हमें लीडर्स की इतनी जरूरत नहीं है, हमें उनकी प्लानिंग के टाइम पे ज्यादा जरूरत है। प्लानिंग के टाइम पे हमने सारा टाइम डाल दिया, नाउ एग्जीक्यूशन हमने दे दिया। अब मैं वहां जाके अगर डे टू डे एग्जीक्यूशन कर रही हूँ, हाउ विल आई बी इन अ पोजिशन टू सी कि यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज आई एम इनसाइड इट, देर इज अ केओस। जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, इट्स अ chaos, it's a lot of chaos, and if I am inside that chaos, I am part of it, so I can never think कि मैं what are the good ways or what are the other ways I can do so that my project is success. So the day you see that you are doing very often the day to day work of the project, get off the dance floor. Do not micromanage your staff कि भाई मैंने ये काम दिया था तुमने किया, मैंने ये काम दिया था तुमने किया, अच्छा चलो हम मिलके करते हैं। Don't do it, because then you're stepping on their toes and you're not making them happy, and you know they will not take responsibility, accountability nahi lenge. So give them a space, plan your work, and then let them do it. Don't go till the time they come asking for a help or you see that they are going to fail. Why? Because when you are in motion and running after deadlines, it's very difficult to observe things from the different perspective. आप क्योंकि आप तो भागा दौड़ी में लगे हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप यहाँ से यहाँ 100 मीटर की रेस करिए, आपका पूरा रेस में ध्यान है, क्या आप सोच पाएंगे कि अरे यहाँ पे शॉर्टकट था, ये दूसरा तरीका था जिससे मैं ये कर सकता था? या फिर क्योंकि आप उसमें डे टू डे में हो, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि 4 मेरे टीम मेंबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये 2 टीम मेंबर नहीं कर पा रहे, लेट मी सी मैं उनको कैसे मोटिवेट करूं, बिकॉज आप उसके अंदर इतने जूझ गए थे कि आपने देखा ही नहीं। सो what adaptive leadership says is get off the dance floor. So where do we go when you want to get off the dance floor? You go to the balcony. This is a metaphor we use to say look at a bigger picture. आप डे टू डे आपने नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि मुझे 6 महीने में ये प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ लाना था। ओके, वेयर इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, मे बी आई टॉक अबाउट परसेंटेज, आई डोंट डील इनटू कि आज ये क्या क्या काम होना था। आज तक 25% कंप्लीशन होना चाहिए इस सॉफ्टवेयर का। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, मे बी 3 फ्लोर्स शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय सितंबर, वेयर आर वी नाउ? These are the bigger pictures you should look for, which you cannot see if you are on a dance floor. So that's the other word that they use is view from the balcony. If you wish to be a leader who is a guiding light, right? A leader has to be a guiding light. Then you need to step up to a balcony from where you can see a bigger picture. Pause a little, right? Sometimes आप
प्रोजेक्ट पे डे टू डे हो, कोई प्रॉब्लम आई है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप तभी की तभी उसके आंसर निकालो और दे दो. आप लीडर हो डजंट मीन कि नहीं सर आपको नहीं पता, अरे मैम आप नहीं बता पा रहे हो, यस यू कैन से आई गेट बैक टू यू. व्हाई? टेक अ पॉज, अ स्टेप बैक और सोचो कि अच्छा मेरा प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा है, ये प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ मुझे अफेक्ट कर सकती है. विल इट अफेक्ट माई फाइनेंसेस, विल इट अफेक्ट माई सप्लाई, विल इट अफेक्ट माई कस्टमर, एंड यूजर. पर अगर आप बहुत ही जल्दी जल्दी उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा. सो वी से टेक अ स्टेप बैक, have a bigger picture, pause a little, gain a perspective, and now come back and guide your team. When on the balcony, project leaders take a step back, gain a clear view of what is happening really, and look at the bigger picture. Does that mean कि leaders ने हमेशा ऊपर बैठना चाहिए, टीम के साथ नहीं होना चाहिए? Right? That is not what we are saying. Adaptive leadership is a continuous movement between the dance floor and the balcony. मतलब आप पहले तो बालकनी में थे, बिगर पिक्चर देख लिया, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट देख लिया, ओके दिस इज माय टीम, दिस इज माय स्पॉन्सर, दिस इज योर बिगर पिक्चर, you have a budget, you have a time, you have done your planning. Now you have passed it to your executing team. But at the same time, you have to be on the dance floor as well. That means you have to be part of them. ताकि एकदम एंड मूवमेंट में जब प्रोजेक्ट फेल हो रहा है एंड व्हेन देयर इज नो वे टू हेल्प देम, इट्स यूजलेस. सो अगर आप बोलो नो नो आई वाज लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, आपने तो मुझे सितंबर तक करके देना चाहिए था. If the project was supposed to be finished in September, it doesn't mean that I go and check in September. Probably I will go three months in gap and मैं देखूंगी कहाँ कहाँ project पहुंचा है, कहाँ problems है. So it is a very fine balance you have to find between the dance floor and the balcony. That is between the planning and execution. So a leader has to be juggling between the two, but in a very systematic manner. Systematic why? Because if you go too much into execution, तो उन लोगों को क्या लगेगा, my leader doesn't trust me, वो बार बार देखता रहता है, बार बार पूछता रहता है, right? एंड अगर आप जरा भी उनको नहीं पूछो तब भी आपकी टीम को लगेगा ओ इनको तो कोई परवाह ही नहीं है हमारी, हम करे कुछ भी करे, यू नो. सो it's like walking on a knife, you know, like thin knife, and find the balance. Why adaptive leadership? इतनी सारी leaderships है, अब हम suddenly adaptive leadership. In fact, till 2 years back, it was more of servant leadership. Even today, it is good, but suddenly adaptive leadership is taking a rise. इसकी demand, इसकी you know, the liking for this leadership is increasing. पहले होता था कि पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता था कंस्ट्रक्शन का, उसकी 3 महीने की शायद हम प्लानिंग करते थे, डिटेल प्लानिंग करेंगे, फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे. आज आपके पास टाइम है, द मोमेंट आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आता है, क्लाइंट को एक दिन भी अपना वेस्ट नहीं करना है. क्या बोलेगा, कल से काम शुरू करो, राइट? नाउ कल से काम शुरू करो, दैट डजंट मीन कि आपके पास इतना भी टाइम है कि आप पूरे का पूरा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बना के उसको एक दिन में दे दोगे. तो आप क्या करते हो, अच्छा एक काम कर, ये डिगिंग तो करनी है ना, लैंड की फाउंडेशन तो बनानी है, चल तू उतना शुरू करो, मैं और प्रोजेक्ट का प्लानिंग करता हूँ. दिस इज कॉल्ड आइट्रेशन, अजाइल. आप पहले होता था कि बिल्डिंग बननी है तो पूरा मैं 3 months के प्लान आपको बना के दूंगी. दिस इज द डे यू विल डू फाउंडेशन, दिस इज द डे यू विल बिल्ड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर. नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, स्पीड हैज इंक्रीज्ड. सो आपको कोई इतना टाइम ही नहीं दे रहा है कि आप इतने सारे महीने बैठ के प्लानिंग करो. आज प्रोजेक्ट आया, कल एग्जीक्यूशन शुरू करो. सो आप उसके लिए आपको अडेप्टिव होना चाहिए. क्या कि भाई मैंने तो उसको भेज दिया था प्रोजेक्ट, डिगिंग करना शुरू कर दी, ये कर दे. प्लानिंग करते करते हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज जो आए, जो आप क्लाइंट के पास गए एंड क्लाइंट बोलता है नो नो बिकॉज ऑफ दिस आई एम नॉट गोइंग टू पे यू एक्स्ट्रा. नाउ यू हैव टू अडेप्ट, ओके लेट मी थिंक व्हाट आई कैन डू, राइट? सो जब हमारे पास प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, पूरी प्लानिंग नहीं होती है, देयर आर लॉट ऑफ बम्पर्स हमारे सामने आएंगे, बट हमें रेडी रहना चाहिए कि हम उसको कैसे चेंज करें. स्पेशली नाउ यू नो कोविड ने सबको सिखा दिया है, देयर इज नो प्लानिंग. एज आई टोल्ड यू कि मुझे ट्रैवल करना है, फ्रेंकली मुझे बॉम्बे जाना है कुछ काम से, बट आई एम सेइंग इफ थर्ड वेव डजंट कम आई विल गो टू बॉम्बे. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी हैव स्टार्टेड यूजिंग. नाउ you have no uncertainty of your life. You don't have no certainty कि मैं कल क्या करूंगा, नहीं करूंगा, सारा कुछ बंद हो जाएगा, मैं कैसे अपना काम करूंगा, right? So when change is constant, what seemed like a good plan yesterday may not be good plan tomorrow. तो आपको this is now the time of A, B, C.
प्लान्स आप लेके चलते हो अपने साथ में, बट आपने तो बना लिए ABC। किसी की वजह से एको कर रहा है या सो आपने तो अपने प्लान बना लिए ABC। क्या आपकी टीम रेडी होगी इतना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर चेंजेस करने के लिए? नहीं, बट दैट इज द टाइम आप यूज करोगे अडेप्टिव लीडरशिप, जहां आप अपनी टीम को मोटिवेट करोगे और बताओगे कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। सो लीडरशिप इन द फेस ऑफ वायोलेट, वाई? बिकॉज टुडे, पहले भी चेंजेस होते थे, ऐसा नहीं कि जैसे आपके फादर ने जो काम किया होगा वो बोलते होंगे अरे आज तो ये सब कितना चेंज हो गया, बट जो हमने काम किया और जो अब की जनरेशन कर रही है उसमें इट्स लाइक 10 टाइम्स स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। सब कुछ अनसर्टन है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, एम्बिगुअस है। वी आर, मतलब एक होता है ना ब्लाइंड फोल्ड हमारे कभी कभी आंख पे लगा के हम जस्ट काम कर रहे हैं। सो इफ यू आर नॉट अडेप्टिव तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप बार बार जितने चेंजेस आएंगे उसको आप ले पाओगे। In adaptive leadership, this ability to perceive, observe, and intervene is often described as moving continuously between dance floor and the balcony. जैसे हमने पहले बताया कि आपको एक जगह नहीं रहना है, you have to move between. So that is why today this adaptive leadership has become so important. The success of a project depends on coordinating with different stakeholders. हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ ये नहीं कि मैं और मेरी टीम है, वो भी एक अपने आप में बड़ा स्टेक होल्डर है। बिकॉज टीम में भी अगर आपके 10 लोग हैं, 10 में से कोई है जिनको जिनकी मोटिवेशन है रोटी कपड़ा मकान, या ठीक है इसको मैं अगर सैलरी में 10% दे दूंगा ये मोटिवेट हो जाएगा, बट कोई है जिसको पैसे से इतना लेना देना नहीं, उसको चैलेंजिंग वर्क चाहिए, राइट? सो आप हर एक आपके जो स्टेक होल्डर होंगे उनका मोटिवेशन अलग होगा। आपके जो परचेज डिपार्टमेंट होगा, आपको भी उसने वो मटेरियल देना है, आपकी ही कंपनी में किसी और डिपार्टमेंट को भी देना है। अब वहां अगर उसका फ्रेंड है तो उसका मोटिवेशन है वो शायद वहां पे ज्यादा सिंसियर होगा। हाउ डू आई टैकल दैट? सो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है कि स्पॉन्सर को चाहिए सब कुछ इन टाइम इन बजट होना चाहिए। क्लाइंट कभी भी नई डिमांड निकालता रहता है, अरे यार ये ऐसा नहीं, ऐसा प्रोजेक्ट बनना चाहिए, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, अरे मैंने तो ये नहीं सोचा था, राइट? देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। Like in Dubai, I just went and I see there's a building, you must have, it's like a twisted, right? दुबई में आपने देखी है मरीना बीच के पास एक बिल्डिंग है विच इज लाइक a twisted। अब जो टिपिकल इंजीनियर होगा उसको जब ये बोला गया होगा उससे पहले क्या बोला होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। कि भाई उसने आज तक 20 साल से सीधी की सीधी बिल्डिंग ही खड़ी की है, उसको नहीं पता। बट इट गोज, द क्रेडिट गोज टू द लीडर जिसने टीम को बताया होगा कि डोंट वरी, आज तक नहीं हुआ पर हम करेंगे, राइट? सो दैट इज द थिंग यू कैन थिंक ऑफ, बिकॉज एवरीवन, आज हम हमारे लिए चैलेंज देख लो कि पहले हमने कभी सोचा नहीं था कैसे जूम पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? हम तो जाते थे कंपनीज में और ऑफलाइन क्लासेस करते थे, रिटेल करते थे, होटल्स में इंटरव्यू ट्रेनिंग होती थी, सामने सामने ट्रेनिंग दी। अब कोविड आ गया, अब ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? यू अडेप्ट, यू अडेप्ट एंड यू कम टू जूम। इंटरव्यूज, कभी हमने सोचे थे कि इंटरव्यूज हम ऐसे ऑनलाइन देंगे? वर्क फ्रॉम होम, अगर हमारा एम्प्लॉय हमें बोलते सर आज तबीयत ठीक नहीं, मैं घर से काम कर लूँ, नहीं नहीं घर से कोई काम नहीं करता, ऑफिस आओ और काम करो, राइट? अब क्या बोलते हैं? वर्क फ्रॉम होम, राइट? बिकॉज कोविड ने बता दिया कि वर्क फ्रॉम होम होता है, कोविड ने बता दिया वर्क फ्रॉम होने से मेरा पैसा बच रहा है। सो नाउ कंपनीज आर फोर्सिंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। अब ये ऐसे सिनेरियोज अगर चेंज होते हैं तो आपकी लीडरशिप भी चेंज होगी। Hence, adaptive leadership is crucial for co-creation of emergent learning and creativity. This is a small diagram के भी stakeholders need है, adaptive leadership है, project management, administrative की needs अलग होती है, आप ये documents भरो, आपने अगर changes चाहिए तो ये change request form भरो, so lot of constraints are there। इन सबको जब मैं साथ में लेके चलूंगी, I will need a creativity and a negotiation to encounter। मेरी क्रिएटिविटी स्किल अच्छी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी मीन्स आई डोंट हैव टू बी गुड पेंटर, बट आई हैव टू क्रिएटिव इनफ टू सी के मैं हर एक के प्रॉब्लम्स का अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकूं। मेरी निगोशिएशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि विनोद जी चाह नहीं रहे थे कि यार ये उनको पसंद नहीं है, ये काम नहीं करना है, पर मुझे पता है कि विनोद जी मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं उनको कैसे मोटिवेट करूं? अरे विनोद जी आप इस बिल्डिंग में काम तो करिए, ये कंस्ट्रक्शन बड़ा ब्रांड, इसकी ब्रांड वैल्यू बड़ी होने वाली है, इसकी पेपर में न्यूज आने वाली है। ओके, देन विनोद जी माइट थिंक ओके चलो ट्राई करता हूँ। सो यू हैव टू बी अडेप्टिव एंड यू हैव टू नो हाउ टू मोटिवेट योर पीपल।
अब कब से बोल रही हूँ अडेप्टिव होना है, अडेप्टिव होना, अरे भैया होना कैसे है, राइट? दैट इज अ क्वेश्चन कि आपने बोल तो दिया कब से अडेप्टिव अडेप्टिव, बट हाउ डू आई बिकम एन अडेप्टिव? फर्स्ट इज एक्सेप्ट दैट चेंज इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। मतलब मुझे चेंज आएगा, मैंने चेंजेस अपने आप को भी करना है, मेरी टीम को भी करना है, ये डिफिकल्ट होने वाले हैं। व्हाई इट इज गुड? बिकॉज एज अ लीडर अगर मैंने पहले सोच लिया अरे मैं तो जाके बोल दूंगा आसानी से हो जाएगा, एंड व्हेन दे रिजेक्ट माय प्रपोजल आई फील बैड, आई फील टेकन अबैक। बट अगर मैंने पहले से सोच लिया कि भैया इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, व्हेन आई से नॉट इम्पॉसिबल आई विल मेक माय प्लान्स अकॉर्डिंगली। एनालाइज एंड अंडरस्टैंड वेयर देयर इज अ गैप। मैंने प्लान किया था, ये एग्जीक्यूशन यहाँ तक पहुंचा है, उसमें गैप है, क्यों गैप है, राइट? ये सीधा सीधा बोल देना माई टीम इज नॉट वर्किंग इज नॉट राइट। प्रोबेबली माई टीम इज वर्किंग, सम रिसोर्स इज नॉट हेल्पफुल टू देम, मे बी क्लाइंट इज नॉट हेल्पफुल टू देम, कोई आउटसाइड फोर्स है, गवर्नमेंट की कोई लॉज है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते। तो एनालाइज, डोंट, जैसे अभी मैंने बोला था पॉज एंड टेक अ स्टेप बैक, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। जब आपको गैप मिलता है, जनरली लीडर्स को लगता है कि मुझे तो क्विक फिक्स, आई एम अ लीडर, आई नो एवरीथिंग, तो मुझे इनको तुरंत बताना है कि क्या गैप है, तुमने गलती की, तुमने गलती की, तुमने गलती की। नो, वेट, पूछ लो क्या क्या प्रॉब्लम है, गैप एनालाइज करो, प्लान सारा अपने दिमाग में सोचो, ये सब अकेले करो। बट जब आप प्लान करने बैठो, प्लान विथ योर टीम। वाई? बिकॉज देन आप टीम को अपनी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो। जब आप टीम के साथ बैठोगे, बोलोगे भाई फेल तो हो गए, भैया ये गैप तो है, शेड्यूल से पीछे है, कॉस्ट ओवर रन कर दी, अब बताओ करें क्या? दिस इज अगेन गेटिंग देम अकाउंटेबल एंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग टुगेदर। डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग इन फेलियर्स। इसमें अब जब अडेप्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे, हम आगे बताएंगे कौन सी अडेप्टिव हो सकती है, कौन सी टेक्निकल हो सकती है। बट अगर कभी अडेप्टिव प्रॉब्लम आएगी ना, तो इट इज समथिंग विच इज, जिसका कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। मतलब आपको हो सकता है कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, कुछ फेल भी हो जाएंगे, बट हैव अ करेज टू डू दैट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन का कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई हमने बोला था कि ये बिल्डिंग तो आपकी होगी 10 फ्लोरी, अब गवर्नमेंट का कोई रूल आ गया है, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये 5 फ्लोर से ऊपर नहीं जा सकती। नाउ आई हैव टू बी अडेप्टिव, आइदर आई सी द लूपहोल्स इन द गवर्नमेंट एंड आई मेक इट अ 10 फ्लोरी, or I convince my client that this is what we can give you, but to complete a project this is X plus 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 which I'll give you, right? Because अगर आप बोल दो अरे गवर्नमेंट ने बोला है now go and do it, we can't do it anything, you're spoiling the relation which you don't want. So आपको experiments करने होंगे जो कभी फेल होंगे कभी सक्सेस होंगे, but don't shy away and have a courage to do that. प्रॉब्लम्स आपके पास दो तरह की आएगी, जब एक होती है टेक्निकल प्रॉब्लम, एक होती है अडेप्टिव प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होगी? जिसकी अथॉरिटी क्लियर होगी, कौन उसका लीडर है, किसको आपने अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर आप जिसमें काम कर रहे थे क्रैश हो गया, ठीक है? अब सॉफ्टवेयर क्रैश होगा तो क्या करेंगे? जहाँ से सॉफ्टवेयर लिया है या तो उसको फ़ोन करेंगे, या फिर हमारे इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट है उनको कॉल करेंगे। सो आई नो द अथॉरिटी, किस कहाँ मुझे अप्रोच करना है, प्रोसेस सेट है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, रेज अ कंप्लेंट, रेज अ टिकट, ठीक है? सो इसको आप टेक्निकल प्रॉब्लम बोल सकते हो, ये जनरली डे टू डे वर्क है। इसमें प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन बीइंग अडैप्टिव और एल्स ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू वे, बेटर वे। नो, दे डोंट रिक्वायर योर टाइम। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, सो ये अपने आप सॉल्व हो जाएंगे अपनी तरह। नाउ अडेप्टिव क्या होगा फिर? ये मोर क्विक फिक्स प्रॉब्लम, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये आपके साथ पहले हुआ नहीं है, ये आपकी कंपनी ने पहले एक्सप्लोर नहीं किया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसमें आपको चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब कोई नया तरीका लाना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि इस प्रॉब्लम से मैं निकलूं कैसे। इट विल चैलेंज योर वैल्यूज समटाइम्स। एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं पे एक प्रोजेक्ट ले लिया, आपने इन्होंने आपको खाली बोला कि जयपुर के ये वेस्ट इलाके में आपने ये बिल्डिंग करनी है, आपने बिल्डिंग के प्लान देख लिए, सब कुछ देख लिया, यू टुक अप अ प्रोजेक्ट। नाउ व्हेन यू गो, आपको वहां पता चलता है कि एक बहुत अच्छा मंदिर है जिसको मैं बहुत मानता हूँ, मुझे तो उस मंदिर को तोड़ के बनाना है वहां पे बिल्डिंग।
नाउ दिस इज अ चैलेंज, इसमें कोई टेक्निकल हेल्प नहीं होगी, इसमें अडेप्टिव हेल्प होगी कि इफ बिकॉज आपके जो वर्कर्स है, आपकी जो टीम है, they are not happy to do that. You are challenging their value. They value worshipping there. Now you are asking them to destroy that temple and come out with a new building. अब ये जब प्रॉब्लम होती है तो इसका कोई सेट रूल नहीं है. अब आप इसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे. पहला एक्सपेरिमेंट क्या करोगे? क्लाइंट के पास जाओगे, क्लाइंट को बोलोगे यार मंदिर है, मंदिर के पास कैसे, आपके पास कोई दूसरी लैंड है, उसके बाजू में लैंड है तो दे दो, कुछ कर लो. If you succeed, that is one way of dealing it. However, if you don't succeed, client say nothing doing. I have paid crores of rupees for that land and you have to do it and I have a permission to break that temple. अब आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, मतलब यहाँ से तो दरवाजा मेरा बंद हो गया. Now you go back to your team and say that I agree and मुझे भी नहीं चाहिए कि मंदिर टूटने वाला है या मैं मंदिर तोड़ूं, but God is everywhere. Suppose और आप बोलो कि हम लेट्स ब्रेक दिस और उसके बाजू में हम एक नया इसके साथ साथ या फिर इसी बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में हम बीच में कहीं एक मंदिर बना दे. नाउ सो नाउ थैंक यू विनोद जी, सो नाउ दे माइट लाइक इट. नाउ इसमें बड़ा आसान होता कि यार तुमको काम करना है तो करो, ये बिल्डिंग तो तोड़ना है, अब नहीं करना है तो जाओ, मैं किसी और को बुला लूंगा. नो, यू हैव टू फाइंड वेज. वही टीम जो पहले नहीं रेडी थी वो आपको और रिस्पेक्ट करेगी बिकॉज ए यू रिस्पेक्टेड देयर फीलिंग एंड यू गेव अ सॉल्यूशन व्हिच वाज हेल्पफुल एंड दे लाइक्ड इट. सो वो ज्यादा मोटिवेट होकर आपके साथ काम करेंगे. As I said, you need to experiment and find new ways to deal with it. अगर वेव आई है जो मैंने सोची थी वैसे नहीं आई है, कुछ अलग वेव है, सो प्रोबेबली उन्होंने सोचा होगा सर्फिंग बोर्ड ऐसे रखूंगा, अब वो सोचेंगे अच्छा ये वेव ऐसी नहीं, लेट मी जस्ट टिल्ट माय सर्फिंग बोर्ड. दैट्स फाइंडिंग अ न्यू वेव. लेट्स गिव सम एग्जांपल अगेन मोर ऑन टेक्निकल प्रॉब्लम. तो हमारा हो गया कि सॉफ्टवेयर है या फिर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन करते करते आपको पता चला है कि गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन है जिसमें प्रॉब्लम है, आप अपने लीगल डिपार्टमेंट के पास जाओगे, लीगल डिपार्टमेंट अप्रोच करेगा गवर्नमेंट को और मैटर सॉल्व हो जाएगा. दिस इज मोर लाइक अ टेक्निकल प्रॉब्लम जिसका डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है और जिसके सेट प्रोसेस है. ये प्रॉब्लम है यहाँ जाओ, ये प्रॉब्लम है यहाँ जाओ, आपको किसी एम्प्लॉय की कंप्लेंट करनी है एचआर में जाओ, राइट. टेक्निकल एंड एडेप्टिव भी हो सकती है प्रॉब्लम. टेक्निकल इज कि आपने किसी का इंडिविजुअल घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बजट ये वो सब कुछ ले लिया. व्हेन यू स्टार्टेड डिगिंग आपको लगा कि लैंड इज नॉट दैट फर्म, इसमें मुझे एडिशनल मटेरियल लगेगा टू मेक इट फर्म विच विल इंक्रीज माय कॉस्ट और मेरा टाइम भी बढ़ेगा. ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग यू विल गो एंड टेल द क्लाइंट. क्लाइंट सेज नहीं तो आपने देखना चाहिए था, तो आप कहाँ के इंजीनियर हो, आपने क्यों नहीं देखा, पूरा आपके ऊपर डाल देगा. अब आपको या तो प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है. अगर आपको करना है एंड यू फाइंड दैट ओके इसकी कोई अडेप्टिव वैल्यू में निकाल सकता हूँ, प्रोबेबली कि भाई आप ठीक है मैं वो एडिशनल आपको खर्चा मैं अपनी जेब से दूंगा, पर आप मुझे एक्स 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 या तो आपका दूसरा कोई प्रोजेक्ट है वो आप मेरे साथ साइन करेंगे. समथिंग फाइंडिंग अडेप्टिव वे टू सी कि हाउ कैन आई कम आउट विद दिस प्रॉब्लम. बिकॉज मेरी कंपनी को अगर मैं दिखाऊंगी कि मैंने ये 1 करोड़ ज्यादा डाला इस प्रोजेक्ट में तो मुझे क्या मिला. हो सकता है उस प्रोजेक्ट से मुझे लॉस मिला, बट उस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने 2 नए प्रोजेक्ट उस कंपनी के साइन किए जिसके पास मुझे वजह से 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है. फाइन, डू इट. सो दिस इज अ गुड एग्जांपल कि टेक्निकल प्रॉब्लम था, जो सेट प्रोसेस थे नहीं सॉल्व हुआ. आई हैड टू कम एंड बी अडेप्टिव एंड देन आई हैड टू सॉल्व दिस. अडेप्टिव चैलेंज का भी हमने जैसे डिस्कस किया कि वहां पे टेम्पल बनना था, उसको हमने तोड़ना था. दैट कुड बी अ गुड अडेप्टिव चैलेंज कि जिसमें टेक्निकल का कोई रोल नहीं था, कोई सेट प्रोसेस नहीं था. इट वाज आउट ऑफ द ब्लू न्यू प्रॉब्लम एंड you came out with solution for that. So we say there are 6 adaptive behaviors. First is get on the balcony, जो हमने already discuss किया. Identify adaptive challenges. मतलब कभी भी अगर आप कल if you start practicing adaptive leadership, कूद मत पड़ो क्योंकि ये है let me see how adaptively I will do it. First to identify क्या ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या ये टेक्निकल और अडेप्टिव प्रॉब्लम है कि क्या ये प्योर अडेप्टिव प्रॉब्लम है. पहले एनालाइज कर लो देन प्लान करो. हम गलती क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, हम उसके सॉल्यूशंस बता देते हैं विदाउट इवन नोइंग कि डू आई नीड टू गिव अ सॉल्यूशन. नो, इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम, प्लीज गो टू योर टेक्निकल मैनेजर. से फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट से आपके पास कोई आ गया कि ये प्रॉब्लम है, ये वेंडर मेरी बात नहीं सुन रहा, ये वेंडर हमें मटेरियल नहीं दे रहा है.
So probably you as a project manager don't need to get into it. You can say that, okay, thanks for informing me. Now go to your manager, inform him and let him talk to the vendor. अब लेकिन अगर आप एक सोचो कि नहीं मैं इसमें अडेप्टिव चैलेंज ले लूं और आप उठा के कॉल कर दो वेंडर को, दैट प्रोजेक्ट मैनेजर द अदर प्रोडक्शन मैनेजर विल बी वेरी अनहैप्पी. आपने मेरे वेंडर से क्यों बात की? यू आर स्टेपिंग ऑन समवन एल्सेस टो. सो यू शुड नो कि क्या ये अडेप्टिव चैलेंज है. रेगुलेट स्ट्रेस, एज आई टोल्ड यू इनिशियली, जहाँ थोड़ी सी चेंज की बात आती है, something happens to us, हमारी reaction, हमारी body language, it becomes very your body sometimes becomes very tight, you know, when someone asks you to do something which you don't want to do it. So that's more like a stress हो जाता है. हमें भी होगा, हमारे employees को भी होगा. So first you have to do is calm yourself and calm your employee, saying that okay, there is change expected, let's see how we can do it better. क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट. सेफ एनवायरनमेंट क्यों? अब कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जहां सारे परेशान हैं, बट आपने ऐसी एनवायरनमेंट नहीं बनाई है जहां पे वो आपको आके कोई सोल्यूशन दे सके. यू वेस्टिंग योर रिसोर्स. आपके पास इतनी अच्छी टीम है, 10 लोगों में से 10 नए आइडियाज आ सकते हैं, बट आप ऐसे लीडर हो ही नहीं जो लोगों की व्यूज और को वेलकम करते हो या अप्रिशिएट करते हो. कोई आएगा नहीं आपको व्यूज बताने, तो आपने 10 दिमाग का यूज नहीं किया. सो क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट वेयर दिस 10 पीपल use their brain to solve the problem that has come rather than you using your one brain. Provide the direction, guidance and protect them and resolve their conflicts. So as a leader, आपका काम है direction दिखाना उनको, क्योंकि उनको नहीं पता. It's so ambiguous. They don't know 3 महीने बाद क्या होने वाला है, but you have some idea based on which you are providing my direction, and I have a faith in you and I walk behind you. You have to guide them, protect them and resolve conflicts. Lot of time managers forget that अरे वो टीम में, टीम अपना कर लेंगे. No. अगर आपको लगे आपने बीच में पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है. कुछ लोग हैं जो ओवरशैडो कर रहे हैं किसी को, कुछ लोग हैं जो काम कम कर रहे हैं पर दिखा रहे हैं कि अरे हमने सब कुछ कर लिया. क्लाइंट की कोई ईगो क्लैशेस है क्लाइंट के विद इन कंपनी में, कभी कभी हमें उसमें भी पढ़ना पड़ता है. सो ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ विन विन सिचुएशंस. We say maintain discipline attention. Basically you have to see that आपकी टीम को पता हो कौन सा important और tough काम है जिस पे उन्होंने focus रखना है. So basically we are saying कि day to day काम भी करना है, वो होता रहेगा, but milestones, that is why we create milestones in projects. Why we create milestone? That milestone is very important. So to reach there, I keep doing day to day work, but I should have my eye on that I'm not missing the deadline of my milestones. Give work to them, do not micromanage, welcome whatever ideas they have, what new things they want to say, and encourage the leaders voice from the below. हमें लगता है बस 6th फ्लोर 7th फ्लोर पे जो लीडर्स बैठे हैं बस उन्होंने ही सब कुछ बोलना है, उन्होंने ही खाली बताना है हमको क्या करना है. नो. आपके जो लेबर्स या जो जो होते हैं ना, जो डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं, या फिर लेबर्स जो फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, you have a challenge because your labor is sometimes illiterate, they are not they don't know the big picture of your company, but they know the land, they know the things there. अरे सर ऐसा नहीं होता है. and you say अरे तुम्हें क्या पता, तुम चुप रहो, तुम इंजीनियर थोड़ी हो. वो इंजीनियर नहीं है पर उसने शायद 20 साल वहां पे काम किया है. so try to talk to them or ask your team members to be nice to them एंड अप्रिशिएट जब भी वो कोई सोल्यूशन देते हैं. या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ सोल्यूशन है जो हम नहीं सोच पा रहे क्योंकि हम यहाँ एसी ऑफिस में बैठे हैं, वो वहां पे बाहर है, उनके जाके पूछो कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये काम कैसे ठीक हो. करते करते पता चल गया कि रेल रोड बीच में आ रहा है, कोई रोड कर रहे थे एंड रेल रोड बीच में आ रहा है. या फिर करते करते वही छोटी सी कोई मूर्ति बीच में आ रही है. अच्छा तो आप सर बताओ इसको कैसे करेंगे. समटाइम्स दे कम अप विद गुड सॉल्यूशंस. Why adaptive leadership is different or how is it different is we are talking more about mobilizing them. We are not talking about individual. We are not talking about one person. We are talking about a team to be mobilized. टीम टू बी मोटिवेटेड. अभी तक मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि एक मैनेजर को, एक अपने सेकेंड एग्जीक्यूटिव को मोटिवेट करो. आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मोटिवेटिंग द टीम एंड टेकिंग देम अलोंग विथ यू. Organizing, you have to do your planning, you have to be between the balcony and the dance floor and keep organizing things, orienting them and giving them a direction, focusing their attention on what is important for the success of the project.
मतलब जब भी हम मीटिंग करेंगे हम देखेंगे कि हम ये जरूर बात करें कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे होगा। अरे आप लोगों ने अगर ये काम ऐसे कर दिए, ये 4 माइलस्टोन अगर आपने अचीव कर लिए ना, ट्रस्ट मी, आवर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। इफ यू डू दिस 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 दिस, हमारा प्रोजेक्ट अंडर कॉस्ट रहेगा, यू नो देयर आर चांसेस वी माइट सेव सम कॉस्ट। ये सारी बातें हमें लगती है कि इनको क्या पता, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू। प्लानिंग सारी ऊपर रखते हैं, बिगर पिक्चर ऊपर रखते हैं। The day you get it down to your executive team, you make them accountable, responsible and part of your whole planning per se, and फिर उनको लगता है ये मेरा प्रोजेक्ट है। Now that makes a difference. The day you make your team realize ये मेरा प्रोजेक्ट है, कि ये ऐसा नहीं कि ये तो अभिमन्यु जी थे, उनका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो सक्सेस होंगे, वो फेल होंगे, नहीं। We as a team is going to be successful. We are going to be the failure together, right? This is a simple, small, I'll share also with you a whole picture of, you can say, कि adaptive leadership. And you see, एक circle भी ऐसा नहीं है कि individual है, it is interconnected. Get off the dance floor, embrace the failure, leadership versus authority, empathy होना चाहिए, trust build करना है, empower your team, diversity, constructive conflict management आपने करना है, focus रखना है आपने भी और आपकी टीम ने भी on what is important, टाइमली रिस्पॉन्स। व्हेन आई सेट कि भाई कोई प्रॉब्लम लेके आएगा तो आपको जरूर नहीं तुरंत की तुरंत रिस्पॉन्स देना है। एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि भाई बहुत देर के बाद रिस्पॉन्स दिया, तब तक शेड्यूल से भी हम पीछे हो गए, कॉस्ट से भी पीछे हो गए, प्लान्स चेंज हो गए, एक्सपेक्ट करके रखो फ्रॉम द डे वन। अपने टीम्स के माइंड में भी डाल दो कि यू नो एक्सपेक्ट द चेंज, बट आई एम देयर विथ यू व्हेन द चेंज कम्स। Embrace the uncertainty, and you are a good adaptive leader and a good adaptive team. Adaptive leader good कैसे होगा? जब उसकी टीम है जो अडेप्ट होने को तैयार है। कोई भी you throw a challenge, you throw a change and they say okay sir, we'll do it,